Chapter number 9. These type tick the correct we share in a in a classroom also. Like first tick the correct is you enter the text with the help of keyboard. Like which device we use for enter the text? It's a keyboard. And next is dash is a flashing line. Like insertion point is a flashing line on the screen. These all things we also share in a classroom. मैंने आपसे क्लासरूम में भी शेयर कर दी है सब चीजें, बट आपको मैं एक बार और आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे. वी कैन यूज डबल क्लिक टू सिलेक्ट अ वर्ड. अगर आपको वर्ड सिलेक्ट करना है तो आप उस पर डबल क्लिक करते हो. अगर आपको इफ यू वांट टू फोर्थ इज टू सेव अ डॉक्यूमेंट. अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है तो शॉर्टकट इज द सेव इज कंट्रोल प्लस सेव, CTRL प्लस सेव. दिस इज द शॉर्टकट ऑफ सेव. And next is fill in the blanks. Fill in the blanks. First is dash is a program used to create text document. It's a MS Word. In MS Word, we create a document. And next is the file. Word file is saved with the extension. The extension of a word file is .docx. This is the extension of word file. And next is vertical flash line on the screen is called insertion point. A flashing line and vertical flashing line is same. It's called insertion point. And fourth one is bold option makes your text darker than the surrounding text. If you want to bold your text, you can use the bold option. The shortcut key of bold is control plus B, CTRL plus B. Okay. Next is the dash tab provides a set of tools related to a particular task. The ribbon tab provide a set of tools. In if you see the ribbon in a word, the ribbon tab it's a set of tools in which have some groups, and every group have some commands or tools that do a particular task. Next is question answer. Define MS Word. Like Microsoft Word is a word processor program which help us to write letters and reports. In Word, in MS Word we can write a letter, we can write a report, we can make a report, and we can write a many things. Any textual information we can easily write in a MS Word. We can add a border in it, shading, tables, graphics in the document. Multiple things we can do in a MS Word. लाइक आप काफी सारे वर्क कर सकते हो. लाइक इसमें कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो. जरूरी नहीं है लेटर लिखो, जो आपके मन में है वो इजीली इसमें लिख सकते हो. आप बॉर्डर्स लगा सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो. शेडिंग मीन्स फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, पेज का कलर चेंज कर सकते हो, टेबल ऐड कर सकते हो, उसके अंदर टेबल का कलर चेंज कर सकते हो इजीली. पिक्चर्स लगा सकते हो, पिक्चर्स को इंसर्ट करनी है अपने कंप्यूटर में से या क्लिप आर्ट में से, वो भी इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हो. Next is insertion point. Insertion point, you all know what is it. It's a flashing line. It's blinking on the screen, flashing on the screen. That indicates where the text type will appear. Like where the text types will appear, it show the insertion point. Next is what is formatting. Formatting means making any change to the text. Like change which type change, like color on it, bold it, increase the size, decrease the size. This type change in a text and document, it should look like attractive and beautiful. It's called formatting. Okay. And next is true false. Word Okay, processor sir. is a first. And next is true false. Word processor is a computer application which is used to create, edit, print, and save a document. It's true because in a word processor software, it's a computer application. It's also correct, and in which we create. इसके अंदर आप create कर सकते हो, edit कर सकते हो, अगर कुछ change करना है, print कर सकते हो, and अपने document को save भी कर सकते हो. Next is MS Paint. MS Paint is an example of word processor. Yes, MS Paint is an example of a word processor. It's false because MS Paint is not an example of word processor. Okay, MS Word is an example of word processor. It's false. Next is third. You cannot use graphic picture with the text in MS Word. It's false because we can use the graphical picture. हम टेक्स्ट के साथ पिक्चर्स भी इसके अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज रिबन. Ribbon display the name of the currently active document. False because currently active document name display in a title bar. It's a wrong answer because ribbon only display the groups of tabs.
Next is fifth, formatting means making any change to the document. Like it's true, because if you change, which type change, like color the font, increase the size, change the style of the font, this type change, if you're doing in a document, that called formatting. Yes, it's correct. So the last true false is also the true. Okay, these type exercise we discuss or questions we discuss also. Sorry, I share in a last class, and in that class we explain on this word. Abha wrote an essay. Abha को एक essay wrote करना है अब्दुल कलाम पर. Now she want to change the font. उन्हें font का essay का font change करना है. She is not able to do it. Explain the steps. These steps she do for changing the text. Like select, first select the text of the essay. Like जो भी essay का उसे text को font का इसका जिसका भी उसे स्टाइल चेंज करना है या उसको चेंज करना है font को, उसको select करेंगी. And then click on home tab. In home tab click on the drop down arrow of the font style में आपका एक drop down arrow मिलेगा, वहां पर क्लिक करके जो आपको font पसंद है उसे आप इजीली यूज कर सकते हो. ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी लास्ट क्लास में जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जब वो वाला टॉपिक आया था, तभी मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी. ओके, ये आपको एप्लीकेशन बेस्ड में आंसर लिखना है. ये भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है क्लासरूम में, आप वहां भी देख सकते हो. एक्टिविटी भी एक शेयर की थी जो आपने कुछ बच्चों ने करके आई थिंक रिटर्न कर दिया है, काफी बच्चों. तो द मूव ऑन द चैप्टर नंबर 10. Okay, the chapter number 9 is completed. This chapter is also complete in a previous class, but today the part of the explanation is left. So today we also complete this. Now move on the नेक्स्ट चैप्टर 10th. अभी हम 10th चैप्टर पे जाते हैं जिसका नाम है मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट. इन विच वी डिस्कस, इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे व्हाट इज मल्टीमीडिया, क्या होता है मल्टीमीडिया, कहाँ पर यूज होता है, कैसे म्यूजिक और वीडियोस प्ले कर सकते हैं हम कंप्यूटर में, गेम्स किस टाइप के प्ले हो सकते हैं कंप्यूटर में, और व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है. ये दिस टॉपिक्स वी कवर इन दिस चैप्टर. ओके, the first topic we see in this chapter is what is multimedia. Like multimedia is an application that is a combination of text, graphic, sound, video and animation. What is multimedia? Multimedia is an application. ये एक application है. एप्लीकेशन हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का, जिसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं, साउंड भी होती है, व्यूज वीडियोस भी होते हैं, एनिमेशन भी होता है. इस इन सबका कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो मल्टीमीडिया बोलते हैं. लाइक इन सबसे चीजें मिलकर अगर कोई चीज बनी है वो मल्टीमीडिया है. ये सब चीजें भी एक मल्टीमीडिया के अंदर आती है. दिस इज द पार्ट दैट ऑल, for text, graphic, sound, video and animation is the part of multimedia. Through multimedia you can make your learning more interesting and effective. Like if you are using the YouTube and you see the video, now you are the using the multimedia. आप मल्टीमीडिया यूज कर रहे हो. इससे क्या होगा, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग उसमें चीजें लग रही हैं, तो आप उससे आपको बहुत इफेक्टिव होती है. द लर्निंग इज इंक्रीजिंग और इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव इन विद द यूज ऑफ मल्टीमीडिया. भी जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको वो आवाज भी आ रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर, जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है. अगर मैं नहीं आपको नहीं दिखाऊं, सिर्फ बोलो बोलूं, तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा. Yes, ओके, तो इस टाइप से मल्टीमीडिया को यूज करके और लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज multimedia system. The computer system that is capable of presenting multimedia application is called multimedia system. The computer system that is capable of presenting multimedia. जो कंप्यूटर सिस्टम मल्टीमीडिया प्रेजेंटिंग करने में कैपेबल होते हैं, इन विच इन दैट कंप्यूटर यू आर इजिली एक्सेस द वीडियो, यू कैन प्ले द वीडियो, यू कैन प्ले द गेम्स, यू कैन प्ले द साउंड. This type in which we use the some multiple application. For this work we can use the multimedia application. Like for playing the video we use the video player, for playing the sound we use the audio player. Okay, these all called a multimedia system. This type computer we also call the multimedia system, in which we use the multimedia options. Like we can see the images or graphics on it, we can hear the sound, we can see the animations. Like multimedia system contains, एक multimedia system में क्या क्या चीज होती हैं. First is monitor. It helps to view animation and movie. आप monitor की help से, and किस type का monitor, colored monitor, जिसमें colored होते हैं, like एक black and white नहीं, colored वाला, जिसमें हम easily animations को देख सकें, movies को easily view कर सकें. ओके, आपको जो चीज दिखेगी, अगर आपको कुछ पढ़ना है मल्टीमीडिया में, तो उसके लिए आपको एक स्क्रीन चाहिए. अगर आपको पिक्चर देखनी है उसके लिए आपको स्क्रीन चाहिए. तो स्क्रीन क्या होती है, मॉनिटर होती है.
इट्स हेल्प टू मॉनिटर फर्स्ट मल्टीमीडिया सिस्टम कंटेन, मल्टीमीडिया सिस्टम में फर्स्ट क्या कंटेन हो करता है, इट्स कंटेन मॉनिटर. इट हेल्प टू व्यू एनिमेशन एंड मूवीज. And next the multimedia system contains, next is CD and DVD drive. It is used to play CD और DVD डिस्क. एंड अगर आपके सेकंड चीज क्या होनी चाहिए आपके मल्टीमीडिया सिस्टम में, डीवीडी होनी चाहिए और सीडी होनी चाहिए, जिसके आज की डेट में जो रिप्लेस कर दिया पेन ड्राइव से. अब जो जो आप डेस्कटॉप या सीडी कंप्यूटर्स खरीदते हो उनमें डीवीडी सीवीडी काफी में नहीं आता, लैपटॉप्स में बेसिकली नहीं आता है सीडी डीवीडी, बिकॉज अब इजिली हम डाटा ट्रांसफर पेन ड्राइव के थ्रू कर लेते हैं, तो सीडी भी इतना यूज नहीं होती है. तो बेसिकली इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, सीडी रोम और डीवीडी ड्राइव. okay, in which we easily play the CD or DVD disc. It is used to play a CD or DVD disc in your multimedia system. Okay, next is speakers. These are used to listen to songs and get sound effect. And अगर आपको like आपको वीडियो प्ले करनी है तो आपको देखने के साथ साथ उसकी आवाज भी सुननी है, तो आपको उसके लिए स्पीकर की रिक्वायरमेंट होगी. तो फॉर द लिसनिंग द सॉन्ग्स और द ऑडियो ऑफ द वीडियो वी कैन यूज द स्पीकर्स for a get a sound effects. And next is microphone and headphone. These are mean for recording the sound effect. अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है या बेसिकली किसी भी पर्पज से आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है, तो आपके लिए उसके लिए माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड फिफ्थ इज जॉयस्टिक. इट इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. मेनली जॉयस्टिक से हम गेम्स प्ले करते हैं कंप्यूटर में, या अदर पर्पज से भी यूज होती है, लाइक सिमुलेटर्स में यूज होती है, डिफरेंट सिमुलेटर्स होते हैं. और जो बेसिक यूज है जॉयस्टिक का कंप्यूटर में फॉर प्लेइंग अ गेम्स. Okay, with the help of joystick we easily play the games in a computer. Next is area where multimedia is used. कहाँ पर multimedia use होता है? Like multimedia programs are generally used for educational purpose. Like for educational purpose we can use the multimedia, like for seeing the video. If like आप YouTube पर वीडियोस देखते हो, एजुकेशनल वीडियोस देखते हो, लाइक अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ये भी मल्टीमीडिया का एक पार्ट है. अब इसके लिए हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने जो भी हम आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारी वॉइस आप तक जा रही है, तो इसके लिए हम एक मल्टीमीडिया सिस्टम यूज कर रहे हैं. लाइक आई यूजिंग द माइक्रोफोन, you using the headphone for listen to me, and okay, and I also use the headphone for listen to you, and you use the screen, I also use the screen monitor. Okay, for educational purpose we also use the multimedia program, like so we use the software like Meet and Classroom type software for multimedia purpose. So we also use the educational purpose multimedia. Second is playing games. Like if you're playing a games in your computer, you also, this is also a multimedia programs. ओके, लाइक वाचिंग अ मूवी. लाइक आपने कोई मूवी प्ले की अपने कंप्यूटर में, तो वो मूवी आप प्ले होती है एक वीडियो प्लेयर में जो मेनली मूवी को प्ले करता है. ऐसे आपके मोबाइल में होता है, तो वो प्लेयर के अंदर एक मूवी चलती है, पहले वो प्लेयर चलता है फिर उसके अंदर मूवी चलती है. तो इट्स अ वॉचिंग मूवी. तो वॉचिंग मूवी इज ऑल्सो द यूज वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स. लाइक कोई भी मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स का सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके अंदर मूवी प्ले हो रही है. फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस, आप एडवर्टाइजिंग देखते हो, वीडियोज आती हैं टीवी में, एडवर्टाइजिंग चलती है, कंप्यूटर में भी आता है, टीवीज में भी आती है. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया. लाइक वो वीडियो बनी है तो किसी न किसी पर्पस, कैसे ना कैसे मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स का यूज करके बनाई गई होगी. ओके, एंड नेक्स्ट इज प्लेइंग म्यूजिक. अगर म्यूजिक प्ले कर रहे हो, अगर मोबाइल में या कंप्यूटर में म्यूजिक प्ले कर रहे हो, तो बेसिकली इसके लिए प्लेयर्स होते हैं, लाइक MP3 प्लेयर्स और ऑडियो प्लेयर्स, जिसमें हम म्यूजिक को प्ले करते हैं, लाइक किसी भी टाइप के साउंड को प्ले करते हैं. ओके, इस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं. एंड क्रिएटिंग एनिमेशन, अगर आपको एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, लाइक स्क्रैच और एनी अदर गेम दिस टाइप सॉफ्टवेयर फॉर यूज फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन. like in PowerPoint we also add the animation, but it's a created animation. And next is there are many multimedia education programs, और काफी मल्टीमीडिया एजुकेशन प्रोग्राम सीडी में भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर उनके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आपके काफी सारे उसमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स बने होते हैं, जिनमें कोर्सेज बने होते हैं आपके सीडी रोम्स में आती हैं, सीडीज आती हैं इन पर्पस के लिए. जैसे कि बुक्स के साथ, किसी बुक्स के साथ सीडीज आती हैं, उनमें एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू आप उन्हें ओपन करो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट गेम्स टाइप भी होते हैं आपको एजुकेशनल, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको लर्निंग फॉर लर्निंग पर्पस के लिए.
Children can learn more about the topic in an innovating and exciting way of playing these series. Like with the help of these type educational programs, student can easily learn. लाइक इसमें बहुत प्ले इसमें गेम्स भी होते हैं फॉर दिस फॉर लर्निंग पर्पस. ओके, उसमें टॉपिक को बहुत इनोवेटिव और एक्साइटिंग वे में दिखाया हुआ होता है, एक्सप्लेन किया होता है, लाइक विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस. तो आपको इजीली बहुत काफी आसानी हो जाती है चीजों को अंडरस्टैंड करने में. सम ऑफ द पॉपुलर मल्टीमीडिया पैकेजेस अवेलेबल इन सीडी रोम्स. ये कुछ मल्टीमीडिया एग्जाम आपको पैकेजेस मिल जाएंगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एनकार्टा, इंसाइक्लोपीडिया, एटलस. एटलस में आपके सारे मैप्स मिल जाते हैं, पूरी वर्ल्ड के मैप मिल जाएंगे अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग जगहों के. उसमें आप इजीली चीजों को देख सकते हो. स्पेस एंड यूनिवर्स, उसमें पूरी स्पेस एंड यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी. इस टाइप के मल्टीमीडिया पैकेजेस होते हैं. ह्यूमन बॉडी एंड मैनी अदर्स, उसमें पूरी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी. डिफरेंट डिफरेंट हैंड, हार्ट, हेड, डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपोनेंट, बॉडी के जो कंपोनेंट है उनके बारे में. विजुअल डिक्शनरी होती है जिसमें वर्ड्स आप इजीली सर्च कर सकते हो, न्यू न्यू वर्ड्स के बारे में सीख सकते हो, उनकी लर्निंग ले सकते हो. दिस टाइप मल्टीमीडिया एजुकेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल in a CDs and also in a internet available. And next is playing music or video. Like you can play your favorite music CD in window media player. In if you when you install your window, it's window media player, it's also installed with the window. In window media player, मैंने आपको बताया था बेसिकली हम प्लेयर यूज करते हैं ऑडियो और वीडियो को प्ले करने के लिए. तो अगर आपको एक ऑडियो प्ले करना है तो जैसे एक विंडो मीडिया प्लेयर है, तो उसके अंदर आप ऑडियो भी प्ले कर सकते हो और इजीली वीडियो को भी प्ले कर सकते हो. ओके, लाइक अगर आपने कोई सीडी इंसर्ट की है तो आप सीडी को सीधा इसमें अपने सीडी ड्राइव में इंसर्ट करो एंड वो सीडी आपकी ओपन करके आप इसमें प्ले कर सकते हो विंडो मीडिया प्लेयर में. और आपने कोई डाउनलोड भी किया हुआ है तो उसे भी सिंपल क्लिक करके प्ले कर सकते हो. और यहाँ पर जैसे नेम इसमें शो कर रहा है, इस टाइप से इसमें नेम शो कर जाता है आपकी जो भी फाइल होती है उसका. ओके, इसमें एक आपका कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल बैक पैनल, जिसकी हेल्प से आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड और पोज कर सकते हो बीच बीच में मूवीज को, सॉन्ग्स को, मूवीज को, और जो भी आप इसमें देख रहे हो. प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर थ्रू मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स, यू कैन प्ले मैनी डिफरेंट गेम्स. अब मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स में आप गेम्स प्ले कर सकते हो. लाइक यू कैन इंप्रूव योर कॉग्निटिव स्किल्स. अपनी स्किल्स को डेवलप करने भी काफी काफी डिफरेंट गेम्स अवेलेबल हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं, मेनली एंटरटेनमेंट पर्पज से भी और आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी. आपकी गेम्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, और आपकी सीडीज भी आती हैं इन गेम्स की, कुछ गेम्स की, लाइक सोलिटेयर, नाइट, दीज आर द नेम्स, गेम्स नेम. काफी टाइम्स गई तो कुछ आपके लिमिटेड गेम्स के नेम आपके सामने हैं. इसके अलावा भी काफी सारे गेम्स अवेलेबल हैं आपके कंप्यूटर के लिए.